Hello everyone, I am continuing with the point which is there in the unit number 7, Indian economy, and in that particular unit we are going to study today the point that is related to changing share of various sectors in national income and employment. As a nation start developing, the contribution of its industrial service sector and service sector in national income and employment increases. तो जब भी कोई नेशन डेवलपमेंट की तरफ होता है तब उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में होता है वो बढ़ता रहता है। तो जिस नेशन में यानी कि जिस किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में अच्छा हो तो वो पर्टिकुलर नेशन या कंट्री जो होता है वो डेवलप्ड समझा जाता है। It means that now people have to depend less on their traditional sector, and with the improvement in technology and capital formation they get employment in the relatively more productive sectors, for example industrial sector and service sector. अब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा हो तो उस नेशन को अपने ट्रेडिशनल सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम रिलाई होने की ज़रूरत होती है। सो टेक्नोलॉजी और कैपिटल फॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है इन सेक्टर्स में से, यानी कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जो रहता है वो अच्छा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होता है। India's service sector has started growing significantly after the reform of 1991. The following table shows the increasing share of industrial and service sector in national income and employment. तो 1991 के रिफॉर्म के बाद जो इंडियन सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप हुआ है, उसमें काफ़ी ग्रोथ आया है और यहाँ पे एक टेबल प्रेजेंट किया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है अलग अलग ईयर्स में। सो बाय दिस टेबल यू कैन सी दैट the contribution of agriculture sector in national income has declined over the years and that of industrial and service sector has increased. यहाँ पे आप टेबल में से ये देख सकते हैं आसानी से कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में थोड़ा कम होता जा रहा है ईयर बाय ईयर, जबकि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। In the next slide, we will continue with a new point. Hello everyone, so let us continue with the point that is about per capita income. The per capita income of India at constant prices in 1950 to 51 was rupees 7,114, which increased to rupees 39,904 in 2013 and 14. Thus, in a period of 63 years, per capita increased by approximately 5.6 times. Between the period from 1950 to 51 to 1990 to 91, it increased about by 1.6%, while after 1991, it increased by 5.5%. तो यहाँ पे इंडिया के पर कैपिटा इनकम से जुड़े हुए सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है। पर कैपिटा इनकम इंडिया का 1950 टू 51 में 7,140 रुपीज़ था, जो बाद में इंक्रीज होके 39,904 रुपीज़ हो गया था 2013 और 14 में। तो 63 इयर्स के टाइम पीरियड में जो पर कैपिटा इनकम जो हमारे इंडिया का है वो 5.6 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है। Between the period from 1950 to 51 to 1990 to 91, it increased by about 1.6%, while after 1991, it increased by 5.5%. तो 1950 to 51 से लेके 1990 to 91 के टाइम पीरियड में जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.6% से इंक्रीज हुआ है, जबकि 1991 के टाइम पीरियड के बाद जो पर कैपिटा इनकम है वो 5.5% से इंक्रीज हुआ है।
we observe that the share of agriculture in the employment has declined over the years and that of industrial and service sector has increased. तो हमें ये भी देखने को मिला है कि जो भी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमी में है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ है, यानी कि वो घटा है। और दूसरा, जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को सिनारियो के लेके काफ़ी हद तक बढ़ गया है। So the share or the contribution of agriculture in employment has declined over the years and that of industrial and service sector has increased. Level of employment. In India, employment is reviewed in three sectors, that is as follow. First one is primary sector, that is agriculture sector. This sector includes agriculture and aligned activities, dairy farming and animal husbandry. तो जो पहला सेक्टर जो हमारे इकोनॉमी में आता है, जो जिसको एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का कह सकते हैं। इस सेक्टर में डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ अलाइंड एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, construction, mining, quarrying and in the other one it include all production activities। तो जो भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है उससे जुड़ा हुआ जो सेक्टर रहता है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं। थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। It includes all activity pertaining to trade, banking, transport, information and broadcasting, health, education and so on। तो सर्विस सेक्टर जो होता है वो ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हुई जो सर्विसेज होते हैं या फिर हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े हुए जो सर्विसेज होते हैं उनको इंक्लूड करता है। नाउ हियर वन टेबल इज बीइंग प्रेजेंटेड दैट इज शोइंग द employment starting from the year 1951 to 2011 and 12, and it is showing the contribution of these three sectors in the employment। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो जो अलग अलग सेक्टर्स का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में कितना है उसे प्रेजेंट कर रहा है। In the next slide, I will continue with the rest of the explanation that is showing the contribution of different sectors in the economy। तो हम अगले स्लाइड में ये देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में टेबल के बेस पे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, वो हम थोड़ा देखेंगे। Okay everyone, so let us continue with the explanation that was based on the table showing the contribution of different sectors in the employment in different years. So in India, year 1951, the contribution of primary sector in employment was 72.1%, that of industrial sector was 10.6% and service sector was 17.3%. In 1991, the contribution of private sector in employment was 66.9%, industrial sector was 12.7% and service sector was 20.4%। तो यहाँ पे पहले 1951 के ईयर में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में 72.1% था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10.6% था और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 17.3% था। 1991 के ईयर में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में 66.9% था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 12.7% था और सर्विस सेक्टर का 20.4% तक था। While in the year 2001, the share of primary sector in employment was 56.7%, industrial sector was 18.2%,
and service sector was 25.2%, and in 2011 and 12 the share of primary sector in employment was 48.9%, that of secondary sector was 24.3%, and service sector was 26.9%. तो यहाँ पे 2001 में जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 56.7% था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 18.2% था, सर्विस सेक्टर का 25.2% था, और 2011 और 12 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में 48.9% था, सेकेंडरी सेक्टर में 24.3% था, और सर्विस सेक्टर में 26.9% था. Thus, it is seen that from 1951 to 2011 and 12, the employment has shifted from primary sector to industrial and service sector. तो 1951 से लेके 2011 और 12 के ये जो आंकड़े हैं, ये जो परसेंटेजेस हैं, उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है. So this was the explanation that was representing the contribution of different sectors in the economy. Hello everyone, I am continuing with the point that is related to improvement in basic utilities. India has shown significant improvement in provision of various utilities in urban as well as in rural areas like electricity, water supply, roads, irrigation, transport, communication, health, education and such. तो हमारे इंडिया ने कुछ बेसिक यूटिलिटीज से जुड़े हुए जो सर्विसेज हैं, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में हम जो फैसिलिटीज यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाया है. उसमें हमें रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बेसिक यूटिलिटीज से जुड़ी हुई फैसिलिटीज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. फिर चाहे वो फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हो, वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ हो, रोड्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हो, उनमें हमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. First point here, it is being stated about irrigation. So in 1950 to 51, only 22.6 meter hectare of land across the country was irrigated, which was increased to 63 meter hectares in 2012 and 13. तो पहले सिर्फ 1950 टू 51 के टाइम पीरियड में सिर्फ 22.6 मीटर हेक्टेयर्स लैंड को इरिगेशन से जुड़ी हुई फैसिलिटी मिलती थी, जो 2012 और 13 में 63 मीटर हेक्टेयर्स लैंड तक पहुंच गई. Thus, about 45% of the total agricultural land has irrigation facility in present time. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 45% जितना टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है उसको अभी इरिगेशन से ओरिएंटेड फैसिलिटी अभी के समय में मिल रही है. लिटरेसी, the literacy rate which was 18.33, so here the one information is being given, but it is not presented in a right way. That why I am starting from the second line. That is, in 1950s there were 20 universities and 500 colleges, which increased to 719 and 35,000 respectively by 2013 and 14. This indicates the rise in higher education. तो 1950 के टाइम पीरियड में 20 यूनिवर्सिटीज और 500 कॉलेजेस ही थे, जो बाद में बढ़ के 790 यूनिवर्सिटीज और 35,000 कॉलेजेस तक इंक्रीज हुआ था 2013 और 14 के टाइम पीरियड में. दिस इंडिकेट द राइज इन हायर एजुकेशन. ये जो बढ़ोतरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हुई है, उससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे हायर एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है हमारी कंट्री में
जो ये इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। Next point is electricity. The electricity generation, which was around 2300 megawatt in 1950 to 51, increased to 2,43,000 megawatt in 2011 and 12. तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिर्फ 2300 मेगावाट का था 1950 टू 51 के टाइम पीरियड में, वो बढ़ के 2,43,000 मेगावाट तक पहुंच गया था 2011 और 12 में। तो इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंक्रीज होना ये दिखाता है कि हमारे बेसिक यूटिलिटीज में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मोर रोड नेटवर्क। In present time, India belongs to the list of country with longest road network. It has approximately 48.6 lakh kilometers of concrete road today. तो रोड से जुड़ी हुई कंडीशन में भी इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया उन कंट्रीज में से गिना जाता है जिनका रोड नेटवर्क जो है वो काफ़ी लंबा है। हमारे कंट्री का जो रोड नेटवर्क है वो 48.6 लाख किलोमीटर तक के कंक्रीट रोड को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेलवे। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट टुडे विद द लेंथ ऑफ 65,000 किलोमीटर। तो इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क है उसको फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क कंसिडर किया जाता है, जो 65,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। Thus, India is progressing fast and now is a prestigious emerging economy. इन आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर रहा है और एक प्रेस्टिजियस इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे अभी बन रहा है। The per capita consumption of essential commodities has increased. Progress is made in the area of science, research and technology and development. Average life expectancy has increased and so on. इंडिया में पर कैपिटा कंजप्शन जो ज़रूरी कमोडिटीज़ का होता है वो बढ़ गया है। जो प्रोग्रेस जो साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिया में भी आज प्रोग्रेस देखने को मिला है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लोगों की है वो भी काफ़ी बढ़ गई है, जो ये दिखा रहा है कि इंडिया जो है वो फास्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। So this is the point that is related to the improvement in basic utility.